میری بہن میری بیٹی اس وقت کا اور آنسوؤں کا سجدہ، خدا کی قسم بغیر آنسوؤں کا سجدہ، آنسو والے سجدے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب بھی دل ٹوٹ جایا کرے کدھر مت جایا کرو، بس سجدے میں جایا کرو، تمہیں محبت ہو جائے گی اللہ کی ذات سے، اور ایسی محبت ہوگی اللہ سے تم کو کہ تم دنیا میں بھی کامیاب۔ یہ پریشانی اسی وجہ سے آتی ہے۔ اس سے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا اور روئی، آنکھیں میں آنسو آئے، گرے ٹپ ٹپ گرم آنسو۔ اس کے بعد بھائی کی اب 3 خبریں سنی ہیں، کانپ رہی ہے غم کی وجہ سے، چلی ہے، ماں بھی ہے، اس کا بیٹا شہید ہوا ہے، بیٹی بھی ہے، اس کا باپ شہید ہوا ہے، اور یہ بہن بھی ہے اس کا، 3 کتنی بڑی بات ہے۔ مگر جب چلی عورتیں پیچھے پیچھے اپنا پردہ کر کے نکلی، نکلتے نکلتے میدان جنگ میں گئی، لوگوں نے سمجھا باپ کی قبر پہ جائے گی، باپ کو دیکھے گی، مگر نہیں، پہلے بھائی کے جنازے کو دیکھے گی، نہیں، کسی نے کہا نہیں نہیں بھائی کو نہیں دیکھے گی، بیٹا اس کا جوان گیا ہے، پہلے بیٹے کے جنازے سے چپٹ کے روئے گی، نہیں نہیں، کسی نے کہا باپ کے پاس جائے گی، مگر واہ رے صحابیہ، وہ جب گئی تو ادھر نہیں گئی جدھر جنازے پڑے تھے، وہ ادھر گئی جدھر حضور آرام کرتے تھے، سرکار جدھر اونٹنی پر تھے ادھر جا کے کھڑی ہو گئی، سرکار نے اس کو دیکھا، دعا کی، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، صحابی کے ایمان پہ میرے ماں باپ قربان ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے، یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ پھر جب وہ گئی جنازے پر تو بالکل پردے میں تھی، باپ کی جب جنازہ دیکھتی تھی تب بھی وہ پردے میں تھی، جب بھائی کی لاش دیکھتی تھی تب بھی پردے میں تھی، جہان بیٹے کی لاش پر پہنچی پھر بھی پردے میں تھی۔ کسی نے پوچھا رے پردہ بھی تک ایسا کیسا ہی ہے، باپ شہید، بھائی شہید، بیٹا کہنے لگے میرے باپ کو موت آئی ہے مگر میرا اسلام ابھی زندہ ہے، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، اسلام کی زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی لڑکیاں اب تو دریافت نہیں ہے، مگر پھر میرے ایمان نے کہا نہیں نہیں ابھی قحط نہیں ہے۔ جب میں نے فلسطین کی واقعات کو پڑھا تو میرا دل اندر سے یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں سید ہوں، مگر اگر مجھے کوئی جوتا لا کے دے دے اس لڑکی کا جس نے یہ بیان دیا تو مرتے وقت کہوں گا جب میں مروں تو میرے سینے پہ غسل دینے کے بعد، مجھے کفن دینے کے بعد اوپر یہ جوتا رکھ دینا کس کا جوتا ہے، تو بتانا یہ ان بچیوں کا جوتا ہے کہ 15,000 بچے تو ایسے شہید ہوئے ہیں فلسطین کے اندر جن کی عمریں 10 سال سے کم تھیں، 10 سال سے کم تھیں، اللہ اکبر۔ اور میاں لاکھوں بچے ایسے بے گھر ہو گئے جن کے گھر کوئی نہیں ہے۔ اب وہ مدد کرنے والا جب کھانے کا پیکٹ دیتا ہے نا تو بچے کے پیچھے پیچھے گیا دیکھوں اس کے گھر میں کون کون ہوگا، تو جس کیمپ میں وہ تھا نا اس میں وہ بچہ 4 سال کا اکیلا تھا، اس کا ماں باپ کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا ایک کیمپ میں رہتا تھا۔ اس سنو تو میرے بھائیوں میری طرف غور تو کرو، ایک ایک بریڈ پہ 3 مسلمان ہیں، مگر ان بچیوں کا بیان کیا تھا؟ ان کے بیان یہ تھے، وہ ان کا بیان یہ تھا کہ ہم رات کو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کہا کیوں؟ برقع تو کوئی اوڑھ کے نہیں سوتا، برقع اتار کے سوتی ہیں عورتیں، آپ برقع اوڑھ کے کیوں سوتی ہیں؟ کہا اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں تو گھر ہمارا ملبوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہم مریں تو ہماری لاشیں جب ملبے میں سے نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جب ہم قیامت کے دن حضور کی بیٹی سے ملیں تو عرض کر دیں اے سیدہ ہمارا سب کچھ لٹا تھا مگر پردہ ہمارا سلامت تھا۔ یہ باتیں میں اپنی بہنوں کو بتا دیتا، کاش اپنی بیٹیوں کو بتا دیتا۔ اگر ایک لڑکی، ایک میری بہن آج سے وعدہ کر لے تو میں جنت البقیع میں اس کا سلام بھی کہوں گا، اور میں قیامت کے دن بھی گواہی دوں گا۔ میری تقریر سن کے میری بیٹی نے، چونکہ نہ وہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے نہ وہ زبان سے کہہ سکتی ہے، مگر دل میں ارادہ کرے میری بہن کہ میں آج سے پردہ کروں گی، آج سے سٹائٹ لباس نہیں پہنوں گی، آج سے آدھی آستین کا لباس نہیں پہنوں گی، تو میں وعدہ کرتا ہوں اس کا سلام مدینے سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، سلام کہوں گا میری بیٹی بس تو کہہ کے دل سے چھوڑ دینا۔ اور سنو میری بیٹیوں، میری بہنوں، کتنی قریب ہے یہ موت، اس سے تم ڈرتی نہیں؟ حضور کی بیٹی کا آج وصال ہونے والا ہے، عمر 25-26 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تقریباً اتنی ہے، اور دنیا سے جا رہی ہے کون؟ آئے ہائے، آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، آؤ چلو سلام کریں خاتون جنت کی بار، کون سیدہ خاتون جنت؟ توجہ تو کریں جن کا چہرہ
हुजूर की तरह, इनके होंठ हुजूर की तरह। सिद्दीक की बेटी सिद्दीका अम्मी आयशा सिद्दीका से पूछा कौन हुजूर की तरह है, तो फरमाने लगी कोई चलने में, बोलने में, उठने में, सोने में, जागने में, अखलाक में, बोलने में, माफ करने में बिल्कुल नबी की तरह है। वो कोई और नहीं है, वो फातिमा ज़हरा है। फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल चल रहा है। फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल बात करने लगा है। फातिमा मुस्कुराती थी ऐसा लगता था आमना का चांद मुस्कुरा रहा है। अब यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, ऐ सिद्दीका आपके कदमों पे कुर्बान सब जाएंगे अहले बैत के आशिक, क्योंकि अगर आप ना होती तो कैसे पता चलता सैयदा कैसी है। कोई रावी नहीं बता सकता था, ये आप ही ने बताया कि खातून जन्नत कैसी है। अब तवज्जो करें, इकबाल कहता है मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो किसकी बेटी है, किसकी मां है। वो इस वजह से ईसा बुलंद है कि वो मरियम का बेटा है। इस वजह से फकत एक निस्बत कि ईसा बेटा है, मरियम मां है ईसा की, इस वजह से बुलंद है। मगर सैयदा को देखो, तैयबा को देखो, नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानु ताजदार हलता। इकबाल कहता है फातिमा वो है जो हसन हुसैन की मां है, अली की बीवी है और नबी की साहबजादी है। कहता है रिश्ता आईन हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफा वरना गिरदे तुर्ब तशकती दमे सजदा बरखा खाके ऊपर शीदमे। इकबाल कहता है फातिमा तेरा वो एहसान है इस्लाम के ऊपर कि अगर मुझे शरीयत की पासदारी न होती तो इकबाल कभी काबे का तवाफ न करता, बल्कि फातिमा ज़हरा की तुर्बत का तवाफ करता। काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ता, फातिमा ज़हरा की तुर्बत की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। ये तो इकबाल के ख्यालात और जज्बात है। मगर जब मेरे इमाम ने बात की है तो अगर इकबाल भी होता तो मुरीद हो जाता मेरे इमाम का। इकबाल ने कहा था मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, कि वो इस वजह से बुलंद है कि वो ईसा की मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की वालदा है। मगर फातिमा को देखो, अल हसन हुसैन की वालदा है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर सोचे नूर उम्मे नूर 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 मुतलकी कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। फरमाते फातिमा नूर की मां है, नूर की बीवी है, नूर की बेटी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत अहले बैत, फैज़ाने गौसे आज़म अल्लामा सैयद शबाद हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। बसा लो हुजूर की बेटी की मोहब्बत दिल में। आओ फिर खड़े होते हैं और कहते हैं अब हमारे घरों में पाकिस्तानी बदतमीजियों के सीरियल नहीं चलेंगे, अब हुजूर का कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह का कलाम पढ़ा। आओ अगर वादा करो तो फिर मैं आपसे बात अर्ज करता हूं। मेरी बहनों सुनो, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। मालूम है हुजूर की बेटी विसाल की वजह क्या बनी? सुनो, हुजूर का गम और सुनो उनका अकीदा। अपने बेटों को यही अकीदा देना। मालूम है क्या फरमाया खातून जन्नत ने? जब हुजूर की कब्र की मिट्टी सूंघी ना तो फरमाया मौला अली से मेरे बाप की मिट्टी की खुशबू का ये हाल है कि जो इसे सूंघ ले उसे कभी मुश्क भी अच्छा नहीं लगेगा, मुश्क की खुशबू भी नहीं भाएगी। आज जल्दी जल्दी काम कर रही हैं सारे। हजरत अली ने कहा क्या हुआ? कहा आज मैं दुनिया से जाने वाली। क्यों? कैसे खबर? कहा आज अब्बा को ख्वाब में देखा था, अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा मेरे अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी बेटी तुझे ढूंढ रहा हूं मेरी फातिमा। कहा आज मैं अब्बा से यार हसन हुसैन जिसके बच्चे हो, अली जिसका शौहर हो, ज़ैनब जिसकी बेटी हो, मगर उसको खातून जन्नत को हसनैन से भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा अपने अब्बा से प्यार है, अपने हुजूर से। कोई इतना भी, हुजूर ने जब ये कहा ना मैं दुनिया से चला जाने वाला हूं तो रोने लगी। जब ये कहा ना तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी तो मुस्कुराने लगी। कोई अपनी मौत की खबर सुन के मुस्कुराया? बोलो मुस्कुराया। मगर एक खासियत ऐसी भी है जो मुस्कुराई है, वो खातून जन्नत है। हुजूर के घर वालों से मोहब्बत अपने दिल में डालो, तुम्हारा बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूं, मेरी ध्यान देना। हुजूर की बेटी फिर जब बिस्तर पे गई तो रोने लगी। हजरत अली ने कहा मौत से डरती है? नहीं 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 नहीं,
फिर ऊपर जब चादर डालते हैं ना मैयत की, मैयत जब हिलती भी चलती है तो सबको खबर हो जाती है कितनी मोटा है मरने वाला, कितना पतला है। मैंने जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो फिर बेपर्दगी हो जाए, किसी को खबर हो जाए मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। मेरा इमाम कहता है जिसका चल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। कयामत का दिन होगा मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज के बाद शादियों में ये बात क्या याद रखोगे आप, तो मैं कह रहा हूं आपसे याद रखोगे? दुपट्टे लेके शादी के गेट के बाहर एक दुपट्टा लेके भारी सा खड़े रहा करो, 20-25 दुपट्टे रख लो, और जैसे ही कोई आए लड़की बाल खुले हुए और बिल्कुल जिस्म उसका टाइट लिबास पे, तो कहना मेरी बहन भाई की तरफ से एक तोहफा रख ले। वो कहा क्या? इसको ओढ़ ले। क्यों? का इस वजह से कि ये मेरे नबी की हुक्म है तेरे लिए, नबी का हुक्म है, इसको रख ले। ऐसी बारातें करो। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं जिंदगी को तब्दील करो। आखिरी बात मेरी ये है जो मैं अब कर रहा हूं, माँ बाप अगर जिंदा है तो इनको मरने से पहले गनीमत जाना। ये एक तो होता है जग बीती, एक होती है आप बीती। आप बीती अभी 6 महीने हुए हैं, मेरी अम्मी को मैंने कब्र में रखा है, जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा था और मैंने उसको कब्र में रख दिया। मैंने अपने बाप को भी कब्र में रखते हुए देखा था लोगों को, अपने ताया को भी रखा। अभी कुछ दिन पहले 22 मई को मोहम्मद अली फैजी साहब के वालिद साहब का विसाल हुआ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मगर उनकी मग़फ़िरत मुझे लगता है कि हो गई है, क्योंकि मैंने जब उनको कब्र में रखा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने बहुत मुर्दे रखे हैं कब्र में। ये बात बयान करनी चाहिए, शरीयत हुक्म देती है। किसी की कमी देखो तो छुपाओ, और अगर तो बयान करो। तो सुनो, मैंने बहुत कब्र, मगर मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने कुछ मुर्दों को कब्र में रखने के बाद कोशिश की है इसका सर हो जाए किबले की तरफ, टूटने की कगार पे आई है बरगर्दन, मगर हुई नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें मेरी जिंदगी में 2 या 3 लोग हैं, उनमें से एक हमारे मोहम्मद अली भाई साहब के वालिद साहब भी हैं। जब मैंने उनको कब्र में रखा तो उनकी गर्दन ढलक के खुद ही किबले की तरफ हो गई, क्योंकि वो 1 महीने पहले किबला देख के आए थे, काबा देख के आए थे, वो हुजूर के रोजे से आए थे, वो हुजूर की अम्मी सैयदा आमना की बारगाह में रोके आए थे। अल्लाह ताला मेरी भी ऐसी मौत करे, आप सबकी भी ऐसी मौत हो कि ऐसी नेक जगह से आए, बरकत वाली जगह, गुनाह माफ करा के आए। अल्लाह हम सबको मौत के वक्त। तो सुनो मेरी, अब मैं आपको बता रहा हूं, माँ अगर जिंदा है उसकी कदर करो, और सुनो माँ अगर घर में है ना, इधर देखना, अगर माँ है घर के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, कोई साजो सामान नहीं है, फिर भी घर भरा लगता है, खूबसूरत लगता है। और अगर माँ ना होना तो घर काटने को दौड़ता है, बाप ना होना तो फिर घबराहट होती है इस घर से। ये घर कैसा घर है, इसमें कोई बुजुर्ग नहीं, कोई बुजुर्ग। आज सुनो, ऐसे तो सब आशिक हैं, मैं भी आशिक हूं, आप भी आशिक हैं, ये भी आशिक, सारी दुनिया आशिक, मगर आप एक आशिक ऐसा है, अगर आप ये कहें मोहम्मद अली फैजी आशिक रसूल नहीं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहें मुफ्ती साहब या मुफ्ती साहब फलां मेरे बारे में कहें ये आशिक रसूल नहीं, हालांकि गुनाह है, मगर ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मेरे नबी के गुलामों सुनो, मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर उसके इश्क में आपने शक किया तो आपके ईमान पे बड़ा फर्क पड़ेगा। उसका नाम सैयदना उवैस क़न्नी है। नबी ने फरमाया मेरा आशिक है, जरा जोर से तो बोलो माशाअल्लाह। कोई बे औलाद बैठा हो तो दुआ मांग ले, मेरा तजर्बा है ऐसे जिक्र में दुआएं कबूल होती हैं। कोई कारोबार से परेशान हो तो मैं तकरीर कर रहा हूं, वो दिल में अपने दुआएं मांगे। मेरी बात सुने, उवैस क़न्नी, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन उवैस क़न्नी? और यार सुनो, जब कोई मदीने से आता है हम लोग पूछते हैं मदीना कैसा है, गुम्बद खदरा कैसा है, मगर उवैस पूछते थे मदीने वाले कैसे हैं, हुजूर की आंखें कैसी, हुजूर के होंठ कैसे, हुजूर चलते कैसे। देखा नहीं था, क्यों? फालिश थी माँ को, फालिज में मुब्तला थी, तो वो गए नहीं, क्योंकि कोई ध्यान रखने वाला था ही नहीं। वो खुद ही बेचारे कमजोर थे, यानी माली हालात बहुत कम थे, कुछ था ही नहीं। बकरी चराते थे और बकरी चरवाहे थे और दिन भर काम करते थे, माँ की खिदमत करते थे और फिर बकरी भी चरा लेते थे। माँ ने देखा मेरा बेटा जब कोई आता है तो पूछता है हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे, तो बोली बहुत मोहब्बत करते हो। तो कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ कुछ आहें, कुछ सिसकियां थी जो जवाब दे रही थी हाँ। माँ ने कहा जाओगे देखने का, तो आप बीमार हो, दौड़ के तो नहीं जा सकता ना आपको। तो माँ से कहा मेरी माँ नहीं जा सकता। माँ ने कहा मेरे लाल 3 पहर की इजाजत देती हूँ, तू चला जा। देखा हुजूर का दीदार करा,
उवैस करनी चले, और जब माँ की तरफ से चले तो यही कहते हुए चले, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। अल्लाह अकबर, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह जफर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। ओ यार, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। अल्लाह अकबर, मदीने पहुंच गए, हुजूर के दरवाजे पे दाता लाहौरी लिखते हैं, जाके अर्ज की, हुजूर तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ, हुजूर के दीदार के लिए आया हूँ, क्या सरकार है? तो आवाज आई, ठहर जाओ, रात को, सुबह को दीदार करके जाना, सुबह को आएंगे। बाहर से रोने की आवाज आई, कौन रोता है, क्यों रोते हो, मुसाफिर क्या हुआ? मेरी माँ बीमार है, हुजूर के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, मगर हुजूर क्या फरमान है माँ बाप का ख्याल रखने का, तो मैं जा रहा हूं। हुजूर जब आए तो कह देना माँ का गुलाम था और चला गया, और हुजूर से कहना मेरे लिए दुआ करे, चरवाहा हूं, मैं एक मजदूर हूं, हुजूर के दीदार के लिए आया था। एक रात की तो बात थी, ठहर जाते, सुबह को सिहाबी बन जाते, मगर नहीं 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 नहीं, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। मदीने जाओ, कभी मदीना देखना ईमान वाली आंखों से, जब तुम पलटोगे तो बाप की मौत की तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना मदीने से वापसी की तकलीफ होगी। मेरा इमाम कहता है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। वापस गए मदीने से, जब वापस गए वैस करनी, अल्लाह अकबर, सुबह हुजूर आए, बेखबर हो गुलामों से वाक़ा क्या है। फरमाया, आयशा बड़ी नूर है, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू आ रही। कौन आया था? हुजूर, उवैस नाम का कोई चरवाहा था, माँ का फरमा बरदार था, रो के गया है, कह के गया, हुजूर से कह देना मेरे लिए दुआ फरमाए, मैं अपनी माँ की वजह से जा रहा हूँ। सरकार, मेरे नबी ने फरमाया, ओए सहाबा मेरे मिंबर लगाओ, अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन सारे तशरीफ लेके आए, मिंबर लगा। हुजूर ने फरमाया, मेरा एक आशिक है। सबके दिल धक 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 करने लगे, कौन आशिक है? फरमाया, मेरा आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं है। उवैस है वो जो दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल करता है। अली तुम उससे दुआ करवाना, उससे दुआ करवाना, उमर तुम जाना उससे दुआ करवाना, वो माँ बाप का फरमा बरदार है। फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, जब वो जन्नत में जाएगा, ठहर जा, वो ठहर जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, उधर देख, मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती खड़े, उनकी तरफ इशारा कर, वो तेरी वजह से जन्नती हो जाएंगे। वो वैसे इशारा करेगा, ऐ है अल्लाह, उन इशारे वालों में मुझे भी शामिल कर दे मालिक। अल्लाह अकबर, इशारा करेंगे, जन्नती जन्नती। मरमाएगा अल्लाह, ये हम बदला देते हैं। आज तुम अपनी माँ को परेशान करते हो, माँ को घुट घुट के जीने मजबूर करते हो, बाप से जबान लड़ाते हो। याद रखना, ये माँ बाप चले जाएं, ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं। बाप के हाथ दबाया करो, पांव दबाया करो, माँ से खिदमत किया करो। बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसे मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जिस दिन उसका बेटा उससे जोर से बात करता है, तेज आवाज से बात करता है। बाप बाप है। दुनिया में घूम लेना, तुम्हें दोस्त तो हजार मिलेंगे, दौलत बदलेगी, दोस्त भी बदलेंगे, मगर बाप कभी नहीं मिलेगा। बाप को कभी आप पा नहीं सकते हो, बाप कभी नहीं मिलेगा। और सुनो, एक हाफिज साहब का मैं साफा बांध रहा था बिहार में, मौलाना साहब का, रोने लगे। मैंने कहा, आज तो आपकी दस्तार फजीलत है, आज तो आपको खुश होना चाहिए, रो क्यों रहे? कहने लगे, मेरा बाप रक्षा चलाता था और कहता था, बेटे मैं तुझे देखना चाहता हूँ आलिम बनता हुआ, मगर वो एक्सीडेंट हुआ, मेरा बाप मर गया। आज मैं आलिम बना हूं, मगर मुझे अपना बाप याद आता है, जिसने जवान बेटे को पढ़ाया, खुद बुजुर्गी में रक्षा चलाया। आज मेरी खुशी वो खुशी नहीं। घर बना के लोग रोते हैं, बाप नहीं। घर बना के रोते हैं, माँ नहीं। माँ है तो उनको दीदार, उनकी खिदमत करो, उनसे खिदमत लो। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कौन से हजरत की दुआ कबूल होगी आपके हक में, कौन से पीर साहब कितने पैसे लेके सच्ची वाली दुआ आपके लिए करेंगे, मेरे पास इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर ये बात मैं कन्फर्म कर रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं, माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में कबूल। ज़बानें खींच ली जाएंगी वो जिन्होंने अपनी माओ से बदकलामी की है, गुत्थियों से खींच ली जाएंगी वो ज़बानें। जलील है वो इंसान, दुनिया का भी आखिरत का भी, जिसने अपनी मां का दिल दुखाया, और कामयाब है वो इंसान जिसने अपनी मां को राजी कर लिया। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं,
जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का भी नहीं कर सकता। वासिफ अली वासिफ कहते हैं जो सामने वाले नजर आने वाले मोहसिन का शुक्र नहीं अदा कर सकता तो वो नजर जो नहीं आता उसका कैसे शुक्र। रोया करो अपने रब के सामने। मैंने तकरीर अपनी मुकम्मल कर दी, कभी कभी रोया करो, उससे कहा करो चूंकि वक्त काफी हो गया, मैं 2 मिनट की और आपसे बस इजाजत चाहता हूँ। मोहम्मद अली भाई से 2 मिनट की बात और कर रहा हूँ। नौजवानों, अपनी तन्हाइयों को पाक कर लो। आला हज़रत से पूछा गया नेक कौन है, आपने फरमाया नेक वो है जो रात और दिन में एक जैसा नहीं है, यानी जो तन्हाइयों में नेक है ना। जो मिंबर पे नेक है ना, अगर वो कमरे में भी नेक बन जाए तो वली बन जाएगा। खुदा की कसम, खुदा की कसम। अपने जाहिर और बातें को एक जैसा करो, रोया करो। आपको पता है आलिम की क्या पहचान क्या है? डरने वाले को अल्लाह ने आलिम कहा है। क्या कहा है? जो डरते हैं वो इल्म वाले ही डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो मेरे बंदे पढ़े लिखे हैं वही मुझसे डरते हैं, उलमा मुझसे डरते हैं। जो नहीं डरता है वो कुछ भी होगा, पढ़ लिखा हो सकता है, मगर वो नेक आदमी नहीं है, शरीफ आदमी नहीं है। शरीफ वही है जो रब से डरता है, जो रब के सामने तौबा करता है। अपने रब से रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो। एक खातून थी मूसा अलैहि सलाम के जमाने में, आखिरी बात, उसने कहा उसका बच्चे बीमार थे तो अपनी पड़ोसी के पास गई, कहने लगे मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। तो उसने कहा मैं तो तुझसे बड़ी रग़बत रखता हूँ, तू बड़ी हसीन है, रात को आ जाना, मैं तो मुझे हर रात एक नई लड़की चाहिए, तू आ जाना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा अभी। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई। वापस जब गई तो बच्चे रोने लगे, तो बच्चों ने कहा अम्मा कब खाना लाएगी। एक बच्चा जब बेहोश होने लगा ना तो गई, तुझसे जो कर्म मिले कर लेना, रात को मैं तुझे पैसे दे, तू मुझे पैसे दे दे फिलहाल। वो पैसे दे के वो चला गया। अब जब वो चला गई, वो चली गई और रात को आई तो इसके बिस्तर पे अकेली थी। इसने इसके हाथ लगाना चाहा तो ये कांपने लगी बिस्तर पे। वो कहा क्यों रोती है, ढोंग दिखाती है, पैसे नहीं मिले तुझे? तो पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी तो कुछ होता है। तो क्या हुआ कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आप तेरे साथ जिना करवाने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। और मैं उससे यही कह रही हूँ मेरे मालिक तू बेहतर है, तू बेहतर जानता है। अल्लाह मुल्क है कि अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते, मैं मजबूर माँ होती ना होती तो कभी ये बुरा काम न करती। तू खुद गवाह है कि मैंने गुनाह नहीं किया, मगर आज मुझे माफ कर देना, जिसम बेचना पड़ा है मालिक बच्चों की भूख की खातिर। जब वो ऐसे रोई ना, वो भी बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, उसने रब ने उसका दिल बदल दिया। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, पैसे दे दिए सारे। वो तो चली गई, ये सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी हाथ तक नहीं लगवाया, और मैं तो कितनी इज्जतें लूट चुका हूँ, कितनी रातों का मुजरिम हूं तेरा, मुझे माफ कर दे। रो के सो गया। सुबह को दरवाजा खटखटाया किसी ने, दरवाजा खुला तो सामने हजरत मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। बोले अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। अब मूसा गलत पते पे आए हो, एड्रेस ठीक नहीं है, मैं तो बदकार इंसान हूं, मुझे नहीं, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कोई तूने नेकी की है? कहा रात में रोया था। पूरी बात बता के बोला कितना रोया? इतना रोया था मेरी आंख के आंसू ने मेरा चेहरा भिगो दिया था। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है मेरे मूसा मेरे बंदों से जाके कह दे कितने गुनहगार सही, बस इतना रो लें कि उनके आंख के आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं रब सब माफ कर दूंगा। ऐ लोगों आओ पलटो रब की तरफ, जिन्हें तुम्हें जो कब्र में लोग सब ये दुनिया फसाना है, धोखा किस तरफ पड़ गए, ये सब तुमको उठा के कब्र में अल्लाह के हवाले करने वाले, इससे पहले ही हवाले हो जाए। रोया करो उसके सामने, तौबा किया करो उसके सामने। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, जिनकी दाढ़ी ना हो वो खड़े हो जाए।